लेती हूँ। चलो क्लिक कर दिया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ओके, सो फॉर द रिकॉर्ड आई एम गोइंग बैक। पेज 129, द अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। वो जो 1.2 में जो पॉइंट दिया है, ओपनिंग 3 लाइनें हैं, दैट इज योर 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज योगा थेरेपी। उसको ठीक से रट ही लो, बाय हार्ट कर लो उसको, ऐसे कैसे एग्जाम में उतार दो। नाउ कमिंग टू पेज 130, integrated approach of yoga therapy is all the 5 koshas. In this we are reading the second paragraph. In yoga we have this fundamental idea: anything that disturbs a person, including illness and disease, can be helped if we can act on the mind. What is so special about yoga is that it gives us a way to strengthen our mind. When the mind gets stronger, we can face illness and we feel healthier. And we are already experienced about this. Through yoga we are only getting mentally stronger, and that is nicely written here. मैंने ये आपको पढ़वाया इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ तो लिखने का है ना, तो लिखने के लिए कौन से वाक्य उपयोग के है, इसलिए ये अंडरलाइन करके मार्क कर दिया ये वाक्य। फिर चौथा बॉटम लाइन ऑफ बॉटम पैराग्राफ ऑफ द सेम पेज, disturbances in Manomaya Kosh percolate into the physical sheath through the Pranamaya Kosh. Hence, in the treatment of these psychosomatic ailments, it becomes mandatory to work at all the levels of existence to bring about quick results. And this is something similar to what we have learned in our some of you have learned it in level 1 or some of you learned at level 2, is जो हम आधि व्याधि का जो विचार करते हैं, उसमें अपना एक डॉक्टर भवनानी का बहुत सुंदर नोट है, उसमें ये सारे कोशों का विचार दिया है, आधि व्याधि का नोट है। व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू योगा एंड व्हाट इज डिसीज मैनेजमेंट इन योगा। तो उसमें सारे आधि व्याधि वगैरह जो हमने पढ़े हैं ना, उसमें ये आया है इसका रेफरेंस कि मनोमय से वो परकोलेट होता है अन्नमय प्राणमय और सारे कोशों में फैल जाता है। So the integrated approach of yoga means we have to work on all these 5 koshas, जो कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं इसको क्योंकि आपको सबको आता है, तो ये क्या सिखाऊं इसमें। Coming to 133, unique features of yoga. ये यूनिक फीचर ऑफ योगा का 5 मार्क का नोट बन सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करो। और ये भी काफी सिंपल है, एंड इफ यू अगर इस ये नोट को आप देखने लग जाओगे, इट इज वेरी parallelly going to Panchakosha. Just see this unique feature. The goal of yoga's simple yet highly effective yoga techniques is to teach you to deal directly with energy and consciousness, enabling you to recharge your body with energy, to awaken the mind's unlimited power, and to experience a deepening awareness of the divine in your life. So yoga is working on the body and energy, माइंड का अनलिमिटेड पावर दे रहा है, यानी कि आत्मा अंदर से मानसिक शक्ति मिल रही है, और डिविनिटी का रोल आपके जीवन में प्रस्थापित कर रहा है। सो डीपनिंग अवेयरनेस ऑफ डिवाइन इन योर लाइफ, ये 3 उसका ओपनिंग में दिया फीचर्स ऑफ योगा में, बॉडी माइंड एंड डिविनिटी, ये 3 एस्पेक्ट ले लेंगे। एंड देन उसके जो पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, कंप्लीट पर्सनालिटी। सो कंप्लीट पर्सनालिटी में how yoga is addressing the whole holistic approach, that point comes in this complete personality. Second is physical health, third is mental well-being, fourth is emotional harmony, and fifth is psychic awakening. So all these points are quite self-explanatory, again having its roots in Panchakosha. देखो टॉपिक उसका नाम भी देखो, फिजिकल हेल्थ, mental well-being, emotional harmony, psychic awakening. So psychic awakening is like going close to Anandamaya Kosha, physical going to Annamaya Kosha, mental well-being going to Vijnanmaya Kosha, emotional going to Manomaya Kosha, isn't it? So उसी से आपको लिंक मिल जाएगा and you can prepare on this as a 5 mark note, unique features of yoga. ठीक है, और इसी में और भी 2 पॉइंट और है पेज 136 में, नॉन अटैचमेंट, दैट इज अनासक्त भाव, एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट।
ठीक है, तो ये सारा आपका 5 मार्क का नोट तैयार हो गया। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन, मैंने आपको मेरा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन भेजा था आपको लास्ट टाइम, उसमें हमारी एग्जाम में डिस्क्राइब यूनिक फीचर ऑफ योगा थेरेपी, ऐसा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था हम लोगों को। Now this is another thing, Sarvanga Sadhana, yoga as a holistic practice. This is something new and I think let's read this point और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। Yoga is a holistic practice that provides balance and good health in the physical, mental, emotional, spiritual dimension. For this reason, yoga is known as Sarvanga Sadhana, all aspects covered. A discipline that takes into account all aspects of individual. Sadhana means practical and Sarvanga, oh, sorry, it is not sadhana, you have to say sadhana. Sadhan is उपलब्धियां, ये करना है, ये क्या क्या करना है, तो ये साधन है। जो इंग्लिश में इसलिए साधना पढ़ लिया, एक्चुअली से साधन। So sadhan means practical and sarvanga is translated as all parties, that is sarva and all parts. Okay, तो ये उसका ओपनिंग हो गया। Coming to page 137, very interesting notes, let's read it. तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट मिलते हैं सर्वांग साधना में, रक्त संचार, प्राण संचार एंड नीना संचार। ये 3 पॉइंट है, हमको ये नए मिल रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपके नोट में सर्वांग साधन अगर बताएंगे, 5 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क नोट के लिए, तो ये आपके 3 उपयोग के हैं। एंड जनरली योग का ऐसा है ना, कोई भी कंसेप्ट कहीं भी ऐसा एज अ फिलर भी यू कैन यूज इट, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस कि योग का बेनिफिट जो है उसमें भी मैं ये रक्त संचार का पॉइंट डाल सकती हूँ, इट्स अ बेनिफिट ना, सो इट कैन बी यूज्ड लाइक दैट आल्सो, आई हैव यूज्ड दैट आल्सो इन माय पेपर। Now coming to Rakta Sanchar, blood circulation. My regular students are very familiar. काय म्हटलंय बाबा दिलीप, कुछ कहा तुमने? नहीं वो हो गया सर, वो क्या पहले क्या वो स्टार्टिंग का मैसेज लिखा। Rakta Sanchar. My regular students are very familiar with the idea that yoga helps to condition your heart and improve blood circulation. In Western style of exercise, the emphasis is on increasing the heart rate to get a good cardiovascular workout. बरोबर, ये सबने एक्सपीरियंस किया है ना? जब भी वेस्टर्न उसमें जाएगा तो इंक्रीज योर हार्ट रेट, एंड वी आल्सो हैव दैट नोशन कि हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उसी से अपना वेट लॉस होने वाला है, बराबर। दैट इज आवर स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड दैट प्रॉब्ली वी हैव गॉट बोरोड दैट फ्रॉम वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग। योग का विचार अलग है। योग however works on the heart in a very different way. ये पूरा लाइन को अंडरलाइन ही करो। योग however works on the heart in a very different way. ये हमें बहुत इम्पोर्टेंटली समझना है कि यहीं पे हमारा योग का एंड फिजिकल एक्सरसाइज का डिफरेंस है और बहुत सुंदर वर्णन है। Combining the breath with specific movements increases the venous return, sending blood towards the heart rather than away from it, which is what happens when you undertake strenuous exercise. यही तो उसको स्टार्लिंग्स लॉ बोलते हैं, तो वही तो है, स्टार्लिंग्स लॉ ही है इधर। हाँ, वो यही है। रमन सर had explained when we were doing the class that time. Okay, तो अभी क्या कहा यहाँ पे, ब्रीदिंग हम लोग आसन में कंबाइन कर रहे हैं। So combining the breath with specific movement increases the venous return. Venous return आपको याद दिला दूं, हमारा वेन्स होते हैं और आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और वेन में अशुद्ध रक्त
का प्रवाह होता है। तो अभी वेन्स का वीनस रिटर्न यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो मेरे हृदय के पास वापस चला जाना चाहिए, तभी वहां से वो शुद्ध होके बाहर निकल के आर्टरीज में आ जाएगा। बराबर? यस मैम। सो अभी जब भी हम आसन श्वसन को जोड़ के कर रहे हैं, combining the breath with specific movement increases the venous return, sending blood towards heart। यानी कि योग आसन जब हम कर रहे हैं तब हम हृदय की ओर रक्त को घुमा रहे हैं, rather than away from it, which happens when you undertake strenuous activity। जब हम strenuous तरीके से करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, अभी देखो पश्चिमोत्तानासन का ही उदाहरण लो। हम पश्चिमोत्तानासन पहले भी आसन का स्थिर सुखम या हाउ दिस आसन गिव्स अस अ सेंट्रल फीलिंग इफेक्ट, उसके लिए हमने ये किया है क्लास में। पश्चिमोत्तानासन में हमने पांव के टोस को पकड़ लिया और पकड़ के ट्राई टू स्ट्रेच मोर एंड रीच मोर, और हम उसमें फिजिकली एक्टिव रहते हैं। जब ऐसा होता है तब क्या होगा, एक्सरसाइज इफेक्ट मिलेगा, मेरा एक्सट्रीमिटीज की ओर ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। बट वो मैं उसको छोड़ के एक बार मैं आसन में पहुंच गया पश्चिमोत्तानासन, then what I do, I forget all my active exercise or active exertion in the Paschimottanasana, जिससे क्या होगा, I am in the sthira sukham asanam of Paschimottanasana, and at that time what I notice is my circulation of energy has suddenly become reaching to the core and in the center। ये याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो अभी के अभी आप लोग कर लो इसे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे, करते हैं अभी? ये याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? हाँ, तो छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। This brings Starling's law into operation, which means that the heart pumps more strongly to deal with increasing blood flow। तो अभी क्या हो गया, इतना ज्यादा खून हार्ट में भेज दिया हमने योग करते वक्त, अभी हार्ट को काम करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना ब्लड आ गया तो उसको सर्कुलेशन में भेजना भी तो पड़ेगा। So this brings Starling's law into operation, which means that the heart pumps more strongly to deal with the increased blood flow without necessarily increasing its rate। तो अभी मेरा हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है मगर सर्कुलेशन हार्ट से जाने का कार्य हो रहा है। यानी कि हार्ट, क्योंकि हार्ट के पास ही ज्यादा ब्लड आ गया तो फिर वो ज्यादा ब्लड भेज देगा, इनपुट आ गया तो आउटपुट भी होगा हार्ट की ओर से। In other words, the heart gets its workout without being put under any strain. Combined with this, performing yoga postures ensures that every muscle in the body is activated, thereby ensuring good blood circulation to every part of the body। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो पैराग्राफ है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे खुल जाए सिम वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसको बराबर से पकड़ लेना दिमाग में। हाँ, क्या कह रहे हैं भरत भाई, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, दिलीप ने अनम्यूट कर दिया। मतलब और बात कर रहे हैं किसी से मैम? अच्छा, ओके, चलो अभी प्राण संचार में आते हैं। So रक्त संचार is blood circulation, prana sanchar is pran circulation। Also unique to yoga is the manner in which it works at a more subtle level। Pran sanchar is the circulation of pran, that is life force, in much the same way as yoga improves blood circulation, it stimulates the flow of pran throughout the body, cleansing and energizing the subtle channels, leaving you feeling light, calm, healed and relaxed। ए मुझे याद आ गया, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, which is very interesting, I am sending a photograph of this because Sneha doesn't have the book with her. So I'm just clicking the picture and sending for Sneha।
वो खोलेगी तो जूम बंद हो जाएगा ना मैम उसका, बट क्या? वो खोलेगी व्हाट्सएप देखने के लिए तो जूम बंद हो जाएगा। हाँ वो भी है। No use, नहीं, ma'am. she No use. she नो can यूज, नो यूज। minimize. नहीं नहीं, Zoom में फिर भी मैं रहेगी। भेज She देती can हूँ, तुम minimize. बाद में पढ़ लो ना, तुम बाद She में can उसको पढ़ लो। minimize Zoom ना. बाद में पढ़ लेना। Let it खोलो। be, मैं बाद में पढ़ लूंगी. Let it be. We will continue. अच्छा कोई जन भेज दो, मेरा वो हैंग ही हो रहा है। मैं भेज रही हूँ। Picture. Somebody click the picture and send. So later on she can use it after the class. कारण ती मोबाईल वरतीच क्लास घेते, त्यामुळे तिला You can open both. सर इज सेइंग यू कैन ओपन बोथ, तो उसको थोड़ा ठीक है, आई एम सेंडिंग, देख ले स्नेहा ट्राई करके। हाँ, you can refer the. But बाद में थोड़ा sound भी problem होता है. I'll see after while. ओके तू म्हणते नंतर मग साऊंड वगैरे पण इफेक्ट पडतो त्याचा, दे ना मला, मी क्लास कंटिन्यू करते बाबा। हे काय इथेच तर आहे, हे काय? अच्छा ओके, एक मिनिट, जस्ट अ मिनिट हा। परिणाम सेंड करना। Okay. Now we are on Pran Sanchar. In much the same way, yoga improves blood circulation. It stimulates the flow of prana throughout the body, cleaning, energizing subtle channel, leaving you feel light, calm, healed, relaxed. अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया. Again, the breath is intimately involved with this process, but at this subtle level, the bandhas, that is energy locks, also help to both contain and direct the flow of prana. Add to this the focus of mind required to perform the postures, and we begin to access the power of this healing energy, which is freely available to all of us. प्राण संचार में प्राणायाम का बेनिफिट दिया है, प्राण का फ्लो कैसे हो रहा है, और वो प्राण का फ्लो अच्छी तरह से होने के लिए बंध का इम्पोर्टेंस एंड मेंटल अटेंशन टू द प्राणायाम प्रोसेस, ये 2 पॉइंट प्राण संचार के लिए काम के हैं। 3 पॉइंट। Third is interesting, Nina Sanchar. So Nina is lymph circulation. I never knew lymph को नीना बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत, whichever the term language. Lymph plays a key role in both the circulatory system and the immune system, helping to cleanse the body fluids and fight infection. Performing yoga postures helps to stimulate circulation of lymph, so encouraging the natural detox which is constantly happening within the body. Inverted postures are particularly effective for stimulating circulation of any kind. It is for this reason that the headstand, shoulder stand are known as the king and queen of the posture, Shirshasana, Shavasana, Sarvangasana. So while you are thoroughly enjoying your yoga session with little more effort from you than full attention to your breath and movement, you can be content that yoga is working behind the scenes at all these levels to increase your levels of health, vitality and longevity. Sarvanga sadhana, it means what it says. तो ये थोड़ा इंटरनेट लैंग्वेज है, बट द लिम्फ इज वर्किंग, ये पॉइंट है यहाँ पे। Trupti, mute yourself. मुझे भी बर्तन मांजने का मन कर रहा है. Yeah. ओके सो नाउ हु हैज टू म्यूट? हमारे घर में तो बर्तन नहीं चल रहा है, किचन बंद है। हो गया हो गया. तुम्हारे घर में आवाज आ रही क्या? नहीं मैम, अलग हो। ओके
योग साधक को बर्तन, बजते हुए बर्तन भी एक संगीत की तरह लेना चाहिए, मतलब। Okay, now this is important. Another, yoga as preventive, maintenance and curative process. ये आपको फुल फ्लेज 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है. हम लोग की जब भी परीक्षा हो गई थी तभी ये 10 मार्क के लिए आया था प्रश्न. Explain how yoga prevents, controls and cures the diseases. 10 mark question. So please prepare this question. So पहला इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, how yoga is preventive, maintenance and curative. Then 1.6, yoga as preventive. So health has three aspects: physical, psychological and spiritual. उसका वर्णन है. I am not getting into the details. Yoga as maintenance and curative process. How yoga is helping you to maintain your good health and how yoga is helping you to cure yourself. ये पूरा आप, क्योंकि वही ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना ही होने वाला है ये पूरे टॉपिक में. इसको आप पढ़ के अपना नोट बना सकते हो. there is nothing to be taught there. What is interesting is 1.8, 141. Yoga's 4-step model in healing and therapy. वो पहले का जो था योगा इज प्रिवेंटिव वाला, उसका पेज नंबर क्या था? Page number 138, 1.5. Yoga as preventive and maintenance and curative process. नेहा, I have sent you the pictures. हाँ, बाद में देख लेना. Okay, thank you. कभी स्नेहा, when you are making a 10 mark question का आंसर ना, तो आपको 1.5, 1.6, 1.7 ये सब मिला के आपका 10 मार्क का आंसर बनने वाला है. Now coming to another 10 mark question which is 1.8 and that is model in healing and therapy. Which therapy? Healing. Healing therapy. Healing and therapy. इनफैक्ट योगा का जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये सारा इसी के ऊपर है. Yoga's 4-step model in healing and therapy. Yoga has many facets of philosophy aimed at realizing the self. बरोबर, जैसे हम चित्तवृत्ति निरोध बोल रहे हैं, so it is a philosophy aimed at realizing the self. आत्मा क्या प्राप्ति कर रहे हैं. A science to understand the mind. हम माइंड को भी देख रहे हैं क्योंकि हम स्वरूप अवस्थानम हो रहे हैं, साथ में वृत्ति क्या है उसको पढ़ रहे हैं. And a practice to keep the body and mind fit. जैसे हम लोग अष्टांग के बहिरंग तत्व जो है सारे, तो उसमें हम हमारे बॉडी एंड माइंड को फिट भी रख रहे हैं. तो ये सारा योग में होता है. आध्यात्मिकता, आत्मा का आत्मबोध तक, फिजिकल बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम से लेके आत्मबोध तक सब कुछ योग में आ गया. बराबर. Over the years, yoga has been taking a prominent place as a healing system. तो ये मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ. सेकेंड पैराग्राफ. Yoga is a subjective science and the results are based on the experience of the practitioner. Also, the tools being same, there is total difference between one individual to another. A lot of factors make the difference. A lot of factors makes the difference very important and cannot be brushed aside. So first, let us look what yoga is. Is it the set of postures called asana or breathing, pranayam or dhyan वगैरह वगैरह ऐसा कुछ तो दिया है. उसमें से कुछ मीटिंग निकाल सकते हो तो निकालो. अपना काम का आंसर इधर नीचे है. योग सूत्र, पेज 142, थर्ड पैराग्राफ. Yoga Sutra gives a wonderful model which forms the basis of the approach to healing. It is called as a vyuha or an arrangement. जैसे हमको व्यूह पता है सबको, अभिमन्यु का चक्रव्यूह सबको पता है. So vyuha is arrangement. It has 4 components: heya, heyam, hetu, hanam, upayam.
अब ये इधर नीचे योगा थेरेपी का मॉडल का इमेज दिया है, पिक्चर ये है आकृति, उसको बाय हार्ट करो, उसको 2-3 बार घर में रट के ड्रॉ करके देखो, तो गड़बड़ मत करना। हेयम कहाँ लिखना है, हेतु कहाँ, हानम किधर है, उपायम किधर है, वो एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको आकृति पेपर में उतारना है, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है हम लोग जैसे स्कूल में पहुंच गए, स्कूल में ऐसे नहीं होता था, हाँ ये डायग्राम है, ऐसे कैसे डाल दो वैसा ही है। So now yoga has got this view with these 4 aspects. Heyam means that which is to be dealt with, and for healing it is the symptoms. So what I have to deal with, जैसे हम लोग ने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है, हेयम दुखम अनागतम, यानी कि क्या, वो जो दुख जो अभी तक आया नहीं है उसका हेय करना है, यानी कि उसको उससे अपने आप को बचाना है। Which means in our therapy model this heya becomes symptoms, because dukha is a symptoms only ना, तो ये symptoms से मुझे बचना है, तो हेय क्या है ये पहला समझना है। हेतु, हेतु means the cause, and the foremost step is to find the cause of the illness. तो हेतु क्या है, कॉज क्या हो गया, अभी मुझे बुखार आ गया, तो बुखार का सिम्टम क्या है, अभी बुखार का कारण क्या है, हेतु क्या है, वो समझना। हानम is the goal, and that generally is the well-being or improving the quality of life. तो बुखार आ गया, बुखार का सिम्टम समझ लिया, बुखार का हेतु कारण किस वजह से आया वो समझ लिया, बुखार से बाहर जाने के लिए मेरा गोल क्या है, क्योंकि जो कारण है वही मेरा गोल बन जाएगा ना, उस कारण से मुझे बाहर आना है ना, so that becomes my goal. So accordingly the goal will have to be structured. That is why in the beginning वो जो हमने जब भी पढ़ा था सेकेंड पैराग्राफ ऑन पेज 141 का जो इंट्रोडक्शन में, इधर योगा इज सब्जेक्टिव साइंस, इसलिए मेरे 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसको डायबिटीज है, मगर चारों के माइंड का विचार करने का तरीका अलग है, तो मेरी ट्रीटमेंट में मुझे अलग अलग जवाब तरीके से मुझे सबको डील करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज ए इंडिविजुअल अप्रोच। तो इसलिए उसका डायबिटीज का कारण क्या है, उस हिसाब से उसका डायबिटीज का हानम बनने वाला है, ठीक है, समझ लिया इस बात को। एंड उपाय, upaya is the means or the tools through which this is achieved. So this gives an important dimension that for the same symptom there can be different causes. Thus yoga therapy is individual oriented and not symptom oriented. तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत काम का है in the exam to write your answer and elaborate your answer. तो ये पैराग्राफ को मार्क कर लो, फिर नीचे ये आपका थेरेपी मॉडल का डायग्राम है, इसको भी स्टार लगा दो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये दिलीप कहाँ गया अचानक से बीच में भरत भी गायब हुआ लगता है चलो हेयम। मैम दिलीप जी और भरत जी इधर ही है। अच्छा साथ में आ गए क्या? हाँ वो एक्चुअली उनका सिस्टम खराब हो गया। अच्छा अच्छा हो गया। ओके तो दोनों हम लोग सुन रहे साथ में हो अभी। ओके हाँ अभी हेयम पेज 143 identifying the symptoms is heyam. The very first step in the healing process actually belongs to the patient, who must recognize that he is in trouble and needs help, and then must seek help. The recognition that we need help is called heyam. Unless a person recognizes that he or she is in trouble, the healing process cannot begin. The recognition happens as a result of familiarity with the symptoms of suffering. I think this is a very fantastic thing. अभी हम लोग ने ज्यादा अभ्यास कर लिया योग का, योग के बारे में समझने लग गए, तो इसे कभी कभार अपने ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आजू बाजू में हमको ऐसे कई व्यक्ति मिलते हैं, हमको ऐसा लगता है यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसमें से इसको बाहर आना है, आपको उसका प्रॉब्लम दिखता है,
उसका सोल्यूशन भी आपको दिखता है, मगर आप होके उसको सामने से जाके बोल नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि उसका प्रॉब्लम आपने जो जिस तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, उसका अभी तक उसका एहसास नहीं है। ही हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट ही इज इन दैट प्रॉब्लम, और इवन इफ ही हैज एक्सेप्टेड, he has not thought of sorting it out. तो ऐसा हो जाता है। So इसलिए an individual has to accept that he is in problem, and then he has to approach the yoga therapist for resolving it. Then only the process begins. So Heyam is a symptom, and one has to recognize that he is in trouble. तो अब ये सब छोड़ दो। 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में आएगा। According to Patanjali's Yoga Sutra 1.31, suffering expresses itself in 4 ways. और ये 1.31 वाला सूत्र है वो सहभुव वाला है। सहभुव का सूत्र याद आ रहा है किसी को? व्याधिस्त्यान दुख दौर मनस्य महादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध अच्छा त्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। ये हो गया अंतराया 1.30। और फिर उसके बाद सहभुव का सूत्र क्या है? दुख दौर मनस्य श्वास दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। तो अभी देखो, दुख इमोशनल स्टेट, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दौर्मनस्य फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी, अंगमेजयत्व एंड ब्रीदिंग पैटर्न, श्वास प्रश्वास। ये जो 4 है, दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। Sabhuva is that which comes along with your 9 type of antaraya, and this is their symptoms. This is the heyam. So emotional state, negative mental attitude, physiological change in the body and breathing pattern. Clear हो गया ये? इसको पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ू क्या? हाँ मैम। दिलीप आप तो हाँ बोलोगे ही, सबको हाँ बोलना। सॉरी मैम। हाँ तो कोई बोल नहीं रहा है, मैं पढ़ लेती हूँ। इमोशनल स्टेट, दुख, जब भी मेरे व्याधियां आ गई, अंतराय आ गए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये सब जब 4 9 से मेरा माइंड में अंतराय हो गया, विक्षेप हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो उसका आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन जो है वो सहभुव में है। तो सहभुव क्या है? दुख यानी कि पेन, दुखी, इमोशनल दुख, दौर्मनस्य मानसिक दुर्बलता, and then angamejayatva, that is a fidgetiness in my body, and here it is explained as a physiological changes in the body. There may be changes in bodily pattern, bodily temperature, breath, smell bad, dark circle around the eyes, ये सारा digestion बिगड़ा, elimination problem, ये सब मेरा body में changes आ गया। And breathing pattern, श्वास प्रश्वास सहभुव, यानी कि क्या? The normal breath is long and smooth, but when it becomes short and labored, that means there is a problem in the breathing. So if you notice, जब भी आपको बुखार रहता है तो आपका breathing it is very distinctly identifiable. So ये हमारे हेयम हो गए। पेज 144 पे उन्होंने बहुत अच्छा एक टेबल दे दिया है। You don't have to put this table in your exam. That will be too much for you to work. Don't do that. पर इसमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश में इफेक्ट दे दिया है। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी में क्या होने वाला है? पेन, बॉडीली अवेयरनेस, मसल टोन, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, ये सब मेरा अन्नमय कोश के निदर्शक है। तो इसमें मुझे डिफरेंस चेंजेस दिखाई देंगे, सिम्टम मुझे यहाँ ढूंढने हैं। प्राणमय कोश में मुझे चेंज कहाँ मिल रहे हैं?
बॉडी में पेन हो रहा है क्या, देन माय प्राणमय कोश इज अफेक्टेड. If my sleep is affected, pranamaya kosh is affected. If there is a headache, there is a because nervous system, again pranamaya kosh. Sensory functions, fatigue, cardiovascular, respiratory, hormonal change, digestive change, bowel, bladder, dizziness, coordination, ये सब प्राणमय कोश को attribute हो सकते हैं. मनोमय कोश में pain, sleep, memory, attention, problem solving, executive functioning, process speed, inhibition, depression, anxiety. PTSD क्या होता है? Emotional stability. So you can understand. So these are your parameters, evaluation parameters, जिसके आधार पे आप कैच कर सकोगे उसके मनोमय कोश में कहाँ डिस्टर्बेंस है, प्राणमय कोश में कहाँ डिस्टर्बेंस है और अन्नमय कोश में कहाँ डिस्टर्बेंस है. ओके, सो दिस इज फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये सब वो वाला लिख डालोगे बहुत हो जाएगा. व्हाई आई एम सेइंग इतना लिखो, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 पेज में पूरा आंसर कवर करना है. तो ये हेयम में बहुत डिटेलिंग में दिया है. ये आपके पर्सनल प्रैक्टिस के लिए, जब यू आर डूइंग योगा थेरेपी एंड यू आर हेल्पिंग योर स्टूडेंट, तभी ये आपको काम में आने वाला है. और ये बहुत काम की चीज है, तो इसको ध्यान में रखो ही. पर एग्जाम के लिए खाली ये 4 सबुओं वाला पॉइंट ध्यान में ले लो, ठीक है? Otherwise your paper will become too lengthy and you will not be able to complete. Coming to the hetu part. The next step is finding the cause, that is hetu. What causes a person to suffer? We know from experience that nothing happens without a cause. If we are suffering, suffering must have some cause. और बाकी सारा कथा कथन पढ़ने का काम का नहीं है. एग्जाम के लिए कॉज ढूंढो, और कॉज के लिए कैसे ढूंढोगे, पेज 145. और ये बहुत ही सुंदर वर्णन है. प्लीज रीड इट एंड स्टडी इट नाइसली, क्योंकि इससे आपका आंसर बहुत एनरिच हो जाएगा. और मैंने ये बराबर से रट लिए थे ये सारे पॉइंट्स, परिणाम, ताप, संस्कार, और ये सारे मैंने आंसर में लिखे भी थे. हाँ, तो इसको रटो बराबर से. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो इसमें आपका हेतु आ जाएगा. तो ये एक एक वर्ड भी ध्यान में रखो, और उसका एक एक 2-3 शब्द और लाइन में, 2-3 लाइन भी बहुत ज्यादा होता है, एक 2 लाइन में उसको एलैबोरेट कर दो, तो आपका हेतु वाला बेसिक. बिकॉज देखो 4 पेज में अगर आपको ये हेतु हान कंप्लीट करना है, तो एक एक के ऊपर एक एक पानी देना है. अंडरस्टैंड दैट. तो इसलिए एक एक खाली कॉन्सेप्ट पकड़ो और उस खाली डाल दो इन योर पेपर. मैम, हाँ मैम ये जो परिणाम, ताप और संस्कार, ये सब हेतु में ही लिखना है? हाँ, हेतु में जवाब में लिखो इसको. अच्छा, ओके. वही अभी मैं वही एक्सप्लेन कर रही. इतना फुल पैराग्राफ उसमें न खोलो, एक या 2 लाइन बस, और ज्यादा मत स्पेंड करो टाइम. तो काफी लंबा लिस्ट है. या इसीलिए खाली पॉइंट ले लो, एक एक पॉइंट पकड़ लो इसका. अच्छा, ओके मैम. परिणाम, और इसको है ना इंग्लिश में आप उसको बाजू में देवनागरी में लिखो, क्योंकि वो संस्कृत शब्द बन जाते हैं, तो हमको स्मरण में रखने के लिए अच्छा पड़ेगा. परिणाम, ताप, और प्रॉब्ली आई डू इट बिकॉज मैं वर्नाक्युलर में सीखी हूँ, तो मुझे वो ओरिजिनल हिंदी और संस्कृत शब्द लिखती हूँ, तो मेरे को फटाक से ध्यान में रहता है. सो चेक व्हाट इज ओके फॉर यू. परिणाम, ताप, संस्कार, असत्संग लिखो साथ में. हाँ, ये मैं बोल रही हूँ. हाँ, लिख दिया? यस मैम. असात्म्य इंद्रिय संयोग, अयुक्त स्वात्मिक गौरवम. मैम ये कभी सुना नहीं ना.
मैं ये लोग ने नया नया कुछ तो ये कर्मठ इनका होते हैं। मुझे लगता है कोई कोई लोग बहुत कर्मठ विचारधारा के होते हैं ना, तो वो उसको अपने ही क्या बोलेगा, अपने शब्दों में अपना ही एक, सबका अपना अपना एक चश्मा रहता है ना, वो अपने चश्मे से ही देखते हैं हर चीज को. So what I see in this note, they are trying to connect everything to original Sanskrit text. So that you are connecting to the original Agam. So they are connecting to the Agam very strongly. And I think it's a very good stand. अच्छा है, ऐसा होना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, हम लोग इतने विदेशी भाषा में सीख के उसको इतना बोरो करने लग गए हैं, तो हम अपनी भाषा को ही भूल रहे हैं. तो अपने जो संस्कृति है उसको अपनी भाषा में तो सीखें. So that is why I am very happy with this note also. So यहाँ पे 146 वात प्रकोप. तो एक सॉरी मैम, आप बोल रहे हो ये आगम में होगा, तो ये हेतु का ये पतंजलि योग सूत्र की कोई व्याकरण में होगा ना ये सब? नहीं नहीं नहीं, पतंजलि योग सूत्र में नहीं होगा. दिस मस्ट दे मस्ट टेकन फ्रॉम आयुर्वेद. आयुर्वेद से आया. ओके ओके ओके. Because we are working now in the therapeutic aspect, no? हाँ हाँ, राइट राइट. वात प्रकोप ये तो आयुर्वेद का ही टर्म है. अयुक्त आहार, भगवत गीता से आया युक्त आहार, अयुक्त आहार. सी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हेतु देख रहे हैं, यानी कि कारण. तो अयुक्त आहार ये मेरे बीमार पड़ने का कारण है ना. अयुक्त विहार ये मेरे बीमारी का कारण है. जन्मज यानी कि हम लोग जैसे देखे हैं कंजेनिटल डिसीजेस, दैट इज अ जन्मज. ईश्वर संकल्प, दैविक आदि दैविक व्याधि होती ना. ओके, फ्लड्स एंड ऑल. तो ये अभी हो गया संस्कृत में, उसको बाजू में लिख दिया. अभी चलो परिणाम. परिणाम यानी चेंज. We suffer because there has been a change either outside of us or within us. So something has changed and that is causing a disease. Even a simple change in the weather can trigger allergies. So देखा, change in environment I am moving with, change in the company of people I am with. अभी जैसे कोरोना है, सांसर्गिक डिसीज है, तो मैं इट इज अ परिणाम ऑफ मी कनेक्टिंग विद somebody who has got an infection. उससे मुझे हो सकता है. सो दैट्स अ परिणाम. ठीक है. ताप, excessive thirst. Sometimes we can have excessive thirst for certain things like food, sex, alcohol, drugs, etc. Such thirst यानी किसी भी चीज में ज्यादा बह जाना, excessive, ये ताप है. संस्कार is our pattern. मैम ये वर्ड तो ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है परिवर्तन बोलना, ऐसा लग रहा है परिवर्तन बोलना चाह रहे तो परिणाम लिख दिया गया. हाँ हो सकता है, ऐसे ही बोल रहा था. बरोबर बरोबर, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. पर मुझे लगता है वो परिणाम इसलिए बोला है क्योंकि वो परिणाम भी अपना का शब्द है ना. परिवर्तन, योग सूत्र में परिणाम ये शब्द आता है ना, इसलिए उन्होंने परिणाम लिया है. ठीक है. परिणाम ताप हो गया. फिर संस्कार, our patterns and habits and our automatic behavior. So मेरा एक पैटर्न रहता है मुख तरीके, जैसे it is my pattern to indulge in sweets. तो मैं बार बार स्वीट खाती हूँ, तो फिर नेचुरली स्वीट ज्यादा खाने से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होने वाला है ना. सो दैट इज माय संस्कार. या कोई लोग होते हैं कि उनको तीखा ही चाहिए, स्पाइसी ही चाहिए, वैसा नहीं रहेगा, नहीं चलता है खाना. सो फिर दैट इज causing disturbance to your ulcers हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तीखा तीखा खा खा के, right? So that is your pattern and habits. असत्संग, inappropriate association or company. The company you keep, the relationships you maintain are important because they influence you. This is a very very yogic approach. हमने ये ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे फलानी बीमारी हो रही है, उसका वजह मेरा असत्संग हो सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं है. और जो स्टूडेंट आपके पास आया है उसने भी नहीं सोचा है, मगर एज हिज योगा थेरेपिस्ट आपको सोचना है. दैट इज व्हाई इफ यू गो यू सी आवर योगा फॉर्म, जब भी आपने हेल्थ प्रोफाइल भरा नहीं भरा है तो जाके फिर से देखो.
यू विल सी वो सारे डिटेल्स आपको चाहिए, तो वो कैसा उठता बैठता है, सबका उसके स्वास्थ्य पे परिणाम होता है। और ये सब आपको जानकारी रहेगी ना, फिर आपको उसके लिए उस हिसाब से वैसा योग का टेक्निक दे दोगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए उसके कारण की मीमांसा होनी चाहिए। इतने सारे देखेंगे कॉजेस तो असत्म्य इंद्रिय संयोग, the linking of the senses to something inappropriate or abusive. In this situation you can suffer from too much exposure or from under exposure. आज ही मेरा आज या कल मेरा बेटी से बात हो गया कि आप लोगों का जो जनरेशन है, एंड देन आई रियलाइज इट्स नॉट हर जनरेशन, इट्स वी आल्सो इन राइट नाउ। सुबह उठते ही हम लोग पहले व्हाट्सएप देखते हैं, किसका मैसेज आया वो देखते हैं। वी आर कंटिन्यूअसली सीइंग द स्क्रीन, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। सो व्हाट आर वी डूइंग? इंद्रिय का कंटिन्यूस अपना जो आंख है, चक्षु इंद्रिय को इतना ओवरलोड दिया हम लोगों ने, तो देखो आंखों में ड्राइनेस आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ असत्म्य इंद्रिय संयोग, लिंकिंग ऑफ द सेंसेस टू समथिंग इनअप्रोप्रिएट और अब्यूजिव। सो इसमें एक, या तो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है कि मैं काम के लिए यूज कर रहा हूँ, बट इट इज स्टिल यू आर अब्यूजिंग योर आईज बिकॉज यू कंटिन्यूअसली पुटिंग देम ऑन वर्क, यू आर ओवरवर्किंग योर आईज। सो ऑफिस में काम के लिए हमने कंप्यूटर देखा, फिर मोबाइल पे फ्रेंड से बात करने के लिए मोबाइल ले लिया, ये सब करने के बाद हमारा वर्किंग डे ओवर हो गया, तो हमको रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया, वापस टीवी चला के पिक्चर देखा। तो फिर एक ही इंद्रिय के ऊपर लोड जा रहा है ना। देन अयुक्त स्वात्मिक गौरवम, inappropriate self esteem, ये तो बहुत बड़ा है। This can mean either excessive ego or lack of self esteem. So in many Indian women you will find this problem of lack of self esteem because they are living like a shadow. ए हम लोग है ना 2 दिन पहले वो पिक्चर देखा थप्पड़। How many of you, anybody seen the picture थप्पड़? नहीं देखा? Nobody has seen it. It is a fantastic movie. I think all of you take it as a homework to see it with your family. बहुत अच्छा, वेरी सटल जाता है, बहुत सटल जाता है। थप्पड़ पिक्चर देखने जैसा है, फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ मिलके देखो। छोटे बच्चे रहेंगे तो उसको सुला दो, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको पास, नथिंग एडेड मटेरियल, बट यू नीड टू, इट्स अ वेरी मैच्योर्ड मूवी, तो वो इसको शांति से देखने का। प्लीज सी दैट, इट्स अ फैंटास्टिक पिक्चर। सो यू विल नो व्हाट इज दिस अयुक्त स्वात्मिक गौरवम, ये उसमें आपको बराबर दिखाई देगा। Inappropriate self esteem, this can mean either excessive ego or lack of self esteem. I think और इसमें ज्यादा explanation देने का जरूरत नहीं है। वातक प्रकोप, angry wind, anything we do that agitates the breath causes to suffer. Breathing is central to life, and if we allow the breath to become agitated, the breath will retaliate and cause suffering. This suffering can take the form of bodily twitches or trembling, yawning, flatulence, indigestion, dry skin, वगैरह वगैरह सब दे दिया। Then अयुक्त आहार, अयुक्त विहार, जन्मजा is congenital. Let's read ईश्वर संकल्प। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। Ishwar Sankalp is divine will. An example would be, क्या है ये? On hit by lightning. There is no explanation for why this would happen. An example would be a person has been hit by lightning. There is no explanation why this should happen except that it was a random act of nature or divine will. Some may argue that this is a result of karma, but the point here is that the cause is unseen. And as a yoga therapist, we are trying to look at the cause.
because when we find the cause, we are going to find the appropriate yoga technique to get out of the cause. We are going to find out the hanam. गोल सेटिंग करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए मुझे कॉज पता चलना चाहिए, ईश्वरी संकेत क्या है उस स्टूडेंट के लाइफ में. व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग द ट्रबल ओनली टू हिम. जैसे हम लोग एक ही घर में हैं, एक ही किचन में खाना बन रहा है, मगर 5 बॉडीज 5 तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं. It is important to second paragraph. It is important to note that these categories are not rigidly distinct. They will overlap on many occasions. It should also be noted that this list covers the most important cases, but there are others as well. So as healers, we must develop the ability to observe, to be able to look at all the different dimensions of a person and to know what to look for. A healer must know not only what to observe but also how to observe. In yoga there are 3 methods of observation. ये भी बहुत अच्छा part है. What are the 3 methods of observation? Probably these 3 methods of observation may not form the part of your answer. If the need be and if you have time, you please incorporate this also in your answer. That will एक weightage मिल जाएगा आपके आंसर को. और ये 3 पॉइंट है, अगर पूरा नहीं लिख दिया, एटलीस्ट दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नम, ये 3 पॉइंट्स तो लिख दो. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस आल्सो. आपके पास जब कोई स्टूडेंट आ रहा है हेल्थ हीलिंग के लिए योगा क्लास में, आपका जो उससे डायलॉग होता है वो ये 3 पॉइंट से ही होता है, दर्शनम स्पर्शनम एंड प्रश्नम. तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो, स्टार लगा दो. Let's see what it is saying. दर्शनम ऑब्जर्वेशन. एक टाइम कितना बज रहा है? 12:10. 1 घंटे के ऊपर हो गया. हाँ मैम. हो जाएगा, पर ये थोड़ा ही बचे, अब कंप्लीट कर लेते हैं इसको, है ना? कंप्लीट करना है ना? हाँ हाँ मैम, करना है. Darshanam, observation through the medium of the senses. This refers to what we see, smell and hear. Is the student's voice weak or strong? Do I smell bad breath? Do I see drooping shoulders or a collapsed chest? We might also ask the patient to perform a physical posture or two as a part of this observation process. So darshanam. अभी जैसे ये सहभुव को एक्सप्लेन करूं कि नहीं करूं, इसके लिए मैंने दर्शनम किया, आप सबका चेहरा देखा और मैंने सोचा नहीं है इसमें डिटेल में जाना रिक्वायर्ड है. So that is the darshanam. You are observing the body language of the person, you are observing the body structure of the person, and you are observing the expression of the person. That is darshanam. Second is sparshanam, observation through touch. This includes such things as taking the temperature or pulse, feeling the shoulder and neck as the way to check the muscle tightness. When using this method of observation, you need to take permission whether you can touch the person. So that is a sparshanam. Prashnam, interaction and dialogue. This refers to talking with the student and observing how he or she responds to questions. Do not always take a verbal response at face value. How the patient responds can often tell you much more than what was actually said. Sometimes the truth resides in what a person does not say. तो आप उसके प्रश्न को पूछते हो, उसमें वो आपका स्टूडेंट जवाब क्या दे रहा है. How the patient responds can often tell you much more than what was actually said. And this is so very true. A person may be telling you, I'm happy, but her eyes are not showing the happiness. She is just not expressing openly what she's hiding, and she's telling you wrong. It is obvious. ऐसा होता है. You also have some people who are attention seeking and they will try to claim that they are so dukhi. They are not actually dukhi. They are just wanting your attention and wanting your time, right? So in either way, you have to be observant and check that. Through the prashna, when the person is speaking, you listen
टू द जैसे रीडिंग इन बिटवीन लाइंस होता है, वैसा हियरिंग इन बिटवीन वर्ड्स को भी सीखना पड़ेगा एज अ योगा टीचर और अ हीलर, बरोबर। वो सब इधर दिया है और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया आप उसको पढ़ लो। नाउ कमिंग टू द हानम। हानम इज नेक्स्ट इज टू सेटिंग ऑफ द गोल। तो गोल सेटिंग के लिए क्या क्या करेंगे, तो उसमें कुछ तो दिया है, ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दैट। गो टू पेज 148। अपने एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स है वो इधर है। मैंने जो ऐसे छोड़ दिया है उसको थोड़ा सा एक बार तो पढ़ ही लो, तो कुछ तो आपको क्लू मिलेगा। सो पेज 148। As ignorance is removed, there is no arising of unhappiness. That is the state of enlightenment. There is a Patanjali Yoga Sutra 2.25 को रेफर किया है। We'll have to see it. मेरे हाथ में बुक है अभी। जब तक आप लोग आ रहे थे तब तक मैं बैठ के पठन कर रही थी यहाँ पे। 2.25 में तद्भावात् संयोगा भावो हानन तदृश्य कैवल्यम। तो ये हान शब्द ही आया है 2.25 वाले सूत्र में। और वो हान कभी होता है, संयोगा भावो यानी संयोग का अभाव। I am not getting into teaching the sutra right now. It is out of context. अभी हम लोग खाली अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर ही सेट कर लेते हैं। समत्वम, आरोग्यम, स्थैर्यम, द्वंद्व सहनम एंड इंद्रिय निग्रह। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये शब्द भी याद रख जाओगे ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर एक एक लाइन का इलेबोरेशन दोगे। Now you'll understand why you need one liner small elaboration on respective point. So now in your Hanam part of your answer, you will be elaborating on these points. And Hana is a goal setting. So for goal setting कुछ आपको introductory 2-3 sentences तो लिखना पड़ेगा about the concept as a Hana, which you will find here in this description on page 147. And elaborating on that is 148. Samatvam, balance and harmony in the human system. Example includes eyes that are neither dry nor watery, an appropriate balance alignment of the body, clear sinuses, efficient regular digestion, elimination, etc. तो ये हो गया बॉडी का समत्वम। So बरोबर से स्टूल्स होना, बरोबर से अन्न का पाचन होना, आपको एसिडिटी का फीलिंग नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा बर्न पा रहा है, थोड़ी सी जलन हल्की सी लग रही है, दैट मींस योर डाइजेशन इज नॉट वर्किंग, देयर इज समत्वम डिस्टर्ब हो गया है। देयर मे नॉट बी डिसीज बट समत्वम हिल गया है। सुबह सुबह हम लोग बम्बई वाले हैं, सुबह सुबह उठ के हम सबको कफ होता है। And we always have been feeling कि सुबह उठते तो थोड़ा तो रहता है, फिर जैसे सूरज आता है निकल जाता है। But nowadays in lockdown phase, I feel सुबह में उठ के जो कफ निकलता है वो बहुत ही कम है। Have you noticed that? Early morning का कफ नहीं होता है अभी, जो पहले होता था। It has drastically dropped. So that's a samatvam. So we are actually coming to the samatvam in the kapha dosh. Then आरोग्यम, नो रोग नो डिसीज। ये रोग है ना जी, क्या लिखा है रोग। देयर इज नो एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट इन वन सिचुएशन, देयर इज आरोग्य। ज्यादा एलाबोरेट भी नहीं किया, छोड़ दिया। देन स्थैर्यम, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, बॉडी, एनर्जी, इमोशन सबका दिया है। द्वंद्व सहनम, ability to remain undisturbed by extremes. So what are the extremes in a person's life? Weather, circumstance, emotion, etc. उसके बावजूद मैंने अपने आप को undisturbed रखना है. This is your goal.
आपके स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डायबिटीज है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस कहाँ हो रहा है? ऑफिस में हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ हो रहा है? सास बहू के झगड़े में हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ हो रहा है? स्पाउस रिलेशनशिप में हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ हो रहा है? बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा नहीं सुन रहा है, वहां स्ट्रेस हो रहा है। सो दीज आर योर डिफरेंट सिचुएशंस इन योर लाइफ जहां से आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो कब करते क्या हो आप? आपका सिचुएशन जब भी आता है चैलेंजिंग, उसमें आपका सिस्टम हिल जाता है, आप डर जाते हो और आपका सिस्टम रिएक्ट करता है। तो आपका रिएक्ट नहीं करना, आपको द्वंद्व सहनम। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, अगर आपको किसी ने पानी में धकेल दिया, हाँ, तो पानी में धकेल दिया तो क्या करोगे आप? ऐसे डूबने से लग जाओगे ऐसे. सो मराठी वर्ड इज गटांग गळ्या खायला लागाल तुम्ही पाण्यात पडल्यावर, यानी कि you will struggle to sustain yourself. That is one thing that will happen, and through that struggle only you will learn to swim. Now जब भी आपका सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन में ऐसा चैलेंजिंग द्वंद्व का सिचुएशन आता है, उस द्वंद्व में अगर आपने उसके तरफ कंप्लेन करना चालू कर लिया या किसने मुझे धक्का दे के गिराया, ये ढूंढने लग जाओगे, यू आर डूइंग द स्ट्रगलिंग, तड़पड़ रहे हो पानी में. आपको क्या करना है? तैरना सीखना है. इफ यू स्टार्ट स्विमिंग, you conquer the situation. So you become the doer, constructive doer in that situation. Is that making sense? Yeah. So that is a dvandva sahanam. अभी इंद्रिय निग्रह. So ये जो एग्जाम्पल है ना, ऐसी सारी कथाएं आपको स्टूडेंट को बोलनी पड़ेगी. वैसे आप बोलेंगे ना, आपका 1-to-1 काउंसलिंग में उसमें ही आपका स्टूडेंट ठीक हो जाता है. फिर आसन तो ऐसे ही खाली करने के लिए आसन कर रहे हैं, बाकी तो ये दिमाग ठीक हो गया, बाकी सब ठीक हो जाता है. इंद्रिय निग्रह, literally holding the senses. A healthy person is someone who has their senses under control, who can direct them or rein them in at will. In such a case, the senses obey the person rather than drawing the person here and there to pursuit of whatever catches the sensory fancy. बहुत अच्छा लिखा है. Sickness results when the senses dominate us, as in the case of any addiction, drug, food, shopping, sex, video game playing, etc. In the process of healing, it is not always possible to address the root cause of illness immediately because the student is not ready. In such cases, we need to choose intermediate goals. Once we have accomplished this intermediate goal, perhaps then the student will be ready to focus on addressing the root cause of the illness. Our goal must be approached in steps. Whether one step prepares us for the next, the healing takes place gradually. ठीक है? तो ये हीलिंग के लिए, जैसे हम इधर उन्होंने हमको ऑब्जर्वेशन के लिए दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम दिया था, वैसा हानम के लिए गोल सेटिंग के, और उसमें इन्होंने समान एंड शोधनम, ये दोनों अप्रोचेस दे दिए. समान is pacification and shodhanam is refining and cleaning. So they are quite self-explanatory. You read it and you will understand that concept. Okay. बहुत बड़ा दिया है समान और शोधनम के लिए, बहुत अच्छा, आप पढ़ लो उसको. उपायम, upayam is the fourth on page 149, bottom line, last 3 lines है. upayam, the fourth selecting methods and tools category of the systematic study in medical science, Chikitsa Shastra, is on how to attain the perfect state of sound health. To accomplish the perfect health, medical science gives treatments that they destroy and that destroy the root cause, that destroys the root cause of the disease. That is arogya upaya, bhaishajyam.
Similarly, Yoga Shastra investigates and teaches you the effective training and methods on how you can attain the state of eternal freedom and happiness. Kaivalya Upaya, Hana Upaya. It teaches you on how to destroy your ignorance, that is avidya, and thereby solve your problem of eternal sorrow conclusively forever. In other words, Yoga Shastra teaches you how to attain your eternal freedom and happiness, and thereby you are overcoming your disease. This is a very nice opening paragraph of Upaya. उसको अच्छे से समझ लो. पढ़ना है इसको वापस कि आगे जाएं? आगे 7. नाचणीचं पीठ आहे ना, नाचणीची कर ना भाकरी. ओके, नाउ अभी इसमें आपका जो आंसर है, आंसर में क्या क्या लिख रहे हो, ये इसको भी मैंने बहुत रट लिया था और मैंने इसको ऐसे कैसे एग्जाम पेपर में लिखा भी था सारा पॉइंट्स. काल, देश लिखो, हिंदी में लिखो उसका बाजू में. काल, देश, वय, that is age, वृत्ति, शक्ति एंड इच्छा. वो उसका इंग्लिश स्पेलिंग कुछ अलग है, बट ही वांटेड टू राइट इच्छा ओनली. इंटरेस्ट उसका ट्रांसलेशन दिया है. So Kala, the healer must take into consider how much time a person can set aside to practice. That is, how much time can he or she comfortably commit to. क्योंकि अभी आप उसको उपाय दे रहे हैं ना, आपको भले लगता है कि उसको 10 सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उसके पास टाइम है क्या करने के लिए, आपको लगता है कि उसने प्राणायाम करना चाहिए, तो आपको उसका पूरा लाइफ शेड्यूल पता होना चाहिए, दिनचर्या पता होना चाहिए. फिर उसका दिनचर्या में कौन सा टेक्निक किधर फिट करने का वो आपको उसको सिखाना है. जैसे आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दिस. सबको पूछते हो तुम्हारा टाइम, ट्रेवलिंग टाइम कितना है, तो वो जो उसका ट्रेवलिंग टाइम है उसमें वो क्या करता है बंदा, ज्यादातर मोबाइल पे ही रहते. मैं और ट्रेन में देखती हूँ सब लड़कियां खाली मोबाइल पढ़ रही होती है. ऑफ कोर्स सम मे बी वर्किंग एंड अटेंडिंग टू सम मेल्स आल्सो, वर्क भी कर रहे होंगे, मगर उस टाइम में निष्पन्न भाव करो ना, बैठो ऐसा शांति से एंड लिसन टू द एक्सटर्नल वॉइसेस, साउंड्स अराउंड यू. दैट्स अ कॉन्शियस रिलैक्सेशन. So you can use your traveling time also fruitfully if you want to. तो वैसा उसको सिखाना पड़ेगा. सिर्फ आंख बंद करना, just closing your eyes, we are conserving good amount of energy. जैसे योनि मुद्रा है, अभी आप उसको योनि मुद्रा ऐसा सब बंद करने को तो नहीं कह सकते ट्रेन में ट्रैवल में, मगर उसको आंख तो बंद करने को कह सकते हो. So closing his eyes, he's saving his energy. Particularly those who are traveling in train, traveling in public transport, आंख बंद करके ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि वो बाजू वाले सब लोगों का निगेटिव एनर्जी आप ले रहे होते हो अपने आंख से. देश, प्लेस, where will the student practice? Is the climate tropical, temperate, cold? वो उस हिसाब से उसको हो सकता है. अभी आजकल हम लोग जिस तरह से हमारा जिंदगी बन रहा है, probably you will have a online class, so you are sitting here in Mumbai and teaching yoga to somebody in United Kingdom. तो फिर उसका देश, उसकी स्थिति परिस्थिति उस हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, है ना. आपके यहाँ उत्तरायण है, उसके यहाँ दक्षिणायन है. तो हमको जब भी ठंडी पड़ती है तभी ऑस्ट्रेलिया वाला को बोल नहीं सकते कि शीतली मत करो, ठंडी का सीजन चालू है. उसके यहाँ तभी समर चल रहा है, हमारे यहाँ ठंडी का मौसम है, isn't it? So we have to see the place. वो है स्टूडेंट का एज देख के. Many times people have crossed 65 and उन लोग को इतना जोश रहता है, उनको सूर्य नमस्कार सीखना रहता है. So उसका वय देखो, या फिर बहुत छोटा बच्चा है उसको भी एकदम डायनेमिक मास्टर बनाने का जरूरत नहीं है. You have to think of the age of the student, फिजिकल कैपेसिटी के लिए एंड फॉर द इमोशनल मैच्योरिटी ऑल्सो. वो भी आप उसको मेडिटेशन सिखाना है, छोटा बच्चे को मेडिटेशन आप कैसे सिखाएंगे, तो उसके लिए एक
बच्चे के हिसाब से मेडिटेशन कैसा बनेगा वो आपको क्रिएटिवली सिखाना पड़ेगा, isn't it? So that is you give him some different concentration technique. Voya, vritti, that is occupation or profession. If the student job involves sitting at a desk all day, he or she will probably need a more dynamic practice. तो ये और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही. शक्ति, पावर और एबिलिटी, वो क्या कर सकता है? हाउ मच फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ डज अ पर्सन हैव, और उसको क्या दे सकते हैं? इच्छा, व्हाट आर द स्टूडेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Consistent with the student interest, we can add a few qualities to do a. जैसे आपका स्टूडेंट है वो बहुत राजसिक टाइप का है, तो फिर वो राजसिक स्टूडेंट को तो आप उसको बोलो सूर्य नमस्कार करो, विल बी हैप्पी टू डू. उसको कुछ ऐसा एकदम धड़कता फड़कता योगासन वैसा कुछ चाहिए होता है. वो उसकी इच्छा जरूर होगी, मगर वो आया आपके पास राजसिक प्रॉब्लम लेके, उसको अल्सर हो गया है, उसको एंजाइटी हो गया, ये राजसिक लोगों की प्रॉब्लम्स है, तो उसके विरुद्ध उसको करना है और उसको चाहिए और उसको सिस्टम को स्टिमुलेट करना. तो उसका इंटरेस्ट क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, वो समझ के उसको अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा टेक्निक. तो उसका जो टेंडेंसी, जो ये उसका स्वभाव है, इसी के लिए तो ये बीमार पड़ा है, यही उसका कारण है, वो ये कारण को ही हमको निकालना है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग. अभी उपाय में इधर एक बड़ा लिस्ट मिल गया है. ऑन पेज 151, आसन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, विजुअलाइजेशन, आयुर्वेद का टेक्निक, साउंड यानी कि मंत्र टेक्निक, योग सूत्र, फिलोसॉफी, यम यम. एक्चुअली ना ये जो लिस्ट है ना, इन्होंने ये दिया है उपाय के टूल्स. अभी आपको लॉकडाउन के कारण मिले नहीं है, आपके प्रैक्टिकल के 2 बुक्स वो लोग ने आपको भेजने हैं, जो वो लोग नहीं भेज पाए हैं. सो वो बुक में आपका ये सब कवर हो जाता है. तो उस बुक में जो उपाय है उसमें in one book you have to make a case study of a person who has got diabetes, और उसका वो पूरा 60-70 पेजेस का बुक बन रहा है आपका. तो वो उस बुक में ये उपाय का ये पूरा लिस्ट एज इट इज दिया है, एंड विद बेस्ड ऑन दिस पॉइंटर्स आप उसको क्या क्या उपाय करवा रहे हो वो आपका प्रेजेंटेशन आपको देना है. दैट इज योर जर्नल के जैसा ही है, सबमिशन है वो आपका. सो वो उसमें ही आता है. ठीक है, टॉपिक कवर हो गया आज का अपना. ओके. और ये जो पॉइंट है ना, ये चैप्टर व्हेन वी डू अदर कोर्स ना, कोर्स अभी ये तो कोर्स 1 में आया है ना, ये एग्जैक्टली ये ही दूसरे कोर्स में भी आता है इसी बुक में. जैसे हमने अभी आज कोर्स 1 किया है, तो कोर्स 2 में या कोर्स 3 में कहीं तो वापस ये खानोपाय सब 4 कॉन्सेप्ट रिपीट होता है. तभी और वापस पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, बिकॉज रिपीटेटिव. चलो, सो आज की क्लास हो गई, प्रार्थना कर लेते हैं और पूरा हो गया. सबको घर में खाना खाने का है, घर वाले सब राह देख रहे हैं. हेड नेक बैक इन अलाइनमेंट. सबके शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं. अपने यहाँ अभी याद आ गया, हीना जोशी का हस्बैंड है ना डॉक्टर, उसको भी प्रेयर में रखते हैं. और भी कोई अपने पहचान वाले जो है सबको ध्यान मेडिटेट अपने प्रेयर में रखते हैं, और उनके लिए प्रेयर सभी लोगों के लिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.
Okay, bye everybody. Bye. चलो close the class here. भरत तुम दिखाओ तुम्हारा चेहरा है कि किधर गया वो है ना? अच्छा चलो ठीक है, रहने दो चलो बाय बाय मैम। Bye everyone. बाय एवरीवन। दिलीप Bye जी। everyone. Bye bye. हम प्रणाम। लोग अभी 4 बजे मिल रहे हैं ना? 4 बजे योग सूत्र का क्लास में। हाँ, और Bye. या 5 बजे वो डिस्कशन में भी। 5 बजे डिस्कशन में। हाँ, अच्छा एक अच्छा, 5 हाँ बजे हिना ने बोला ना चर्चा। गप्पे मारने सबके साथ। यौगिक गप्पे होंगे। योगिक गप्पे। योगिक कुछ गप्पे जोक और याद करके आना है क्या अनयोगिक मैडम वहाँ खाना। पे? क्या बोल रहा है भरत? कुछ याद करके आना है जोक वो वहाँ पे गप्पे के लिए। करके आ जाओ ना। He just said no, we'll just chat. ओके मैम। Okay. बाय चलो, एवरीवन। Bye. बाय Bye. मधु, दिलीप, भरत। सभी को प्रणाम। जी।